بڑے چوروں کو سزا نہ ملنے سے پاکستان پیچھے رہ گیا، ایسا نظام لا رہے ہیں کہ طاقتور کمزور کا حق نہ مار سکے۔ ماضی میں ایک دوسرے کو چور کہنے والے پھر اکٹھے ہو گئے۔ سیاست میں چوروں اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے آیا ہوں، احتساب ضرور ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کا فیصل آباد میں خطاب۔ عسکری قیادت کا دہشت گردوں کی واقعات اور سہولت کاروں کے مکمل خاتمے کا عزم۔ دہشت گردوں کو دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ سیکیورٹی صورتحال بالخصوص بلوچستان میں حالیہ واقعات پر جامع بریفنگ۔ مادر وطن کے دفاع میں جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اعظم کی منتخب نمائندوں کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت۔ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے کارکنوں کو متحرک کیا جائے۔ عوامی مسائل کے جلد حل کے لیے زرعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں۔ شہباز شریف اور مریم نواز ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ لوٹی ہوئی دولت واپس کیے بغیر یہ باہر نہیں جا سکتے۔ عدم اعتماد کا شور بھی این آر او کے لیے ہے۔ وزیر اطلاع چودھری فواد حسین۔ اتحادی ساتھ ہیں، اپوزیشن کی سیاست 50 دن کی رہ گئی۔ فضل الرحمان، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست الگ الگ ہے۔ عمران خان مزید مضبوط ہوں گے، وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مؤخر کرنے کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل۔ الیکشن کمیشن کو سنے بغیر محکمہ موسمیات کی رپورٹ پر عجلت میں فیصلہ کیوں دیا گیا؟ سپریم کورٹ۔ الیکشن کمیشن نے دوسرے مرحلے کا نیا شیڈیول جاری کر دیا۔ 18 اضلاع میں 31 مارچ کو پولنگ ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے سینیٹر فیصل وابڈا کو نااہل قرار دے دیا۔ 27 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ عوامی عہدہ رکھنے کے دوران حاصل مالی مراد واپس کرنے کا حکم۔ سرمایہ کاری کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کے رجسٹریشن کے طریقہ کار کو مزید آسان بنایا جائے۔ آئی ٹی کے شعبے میں بہت صلاحیت ہے، سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے رکاوٹیں دور کی جائیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی۔ فیصل آباد ڈویژن میں بھی ہیلتھ کارڈ کا اجرا۔ 1.5 کروڑ آبادی کو مفت علاج کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ عمران خان ملک و قوم کی آخری امید ہیں، حکومتی پالیسیز کا محور عوام ہے۔ عمران خان کی قیادت میں تعمیر و ترقی کا سفر جاری رہے گا، وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب۔ بھارت میں حجاب پر پابندی کے خلاف ملک گیر احتجاج۔ کرناٹک میں تمام ہائی اسکول 3 دن کے لیے بند۔ سوشل میڈیا پر اللہ اکبر کا ٹرینڈ۔ پرینکا گاندھی نے بھی حجاب کی حمایت کر دی۔ کرناٹک ہائی کورٹ کا لارجر بینچ معاملے کی سماعت کرے گا۔ بھارت کا گھناؤنا چہرہ ایک بار پھر بے نقاب۔ مودی سرکار کی ہندو انتہا پسندوں کی کھلے عام سرپرستی۔ گائے کی توہین کے الزام میں مسلمانوں پر تشدد معمول بن گیا۔ اقلیتیں محفوظ ہیں، نہ ہی نچلی ذات کے ہندو، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ۔ افضل گرو کے یوم شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال۔ تمام تجارتی مراکز بند، سڑکوں پر ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ حریت رہنماؤں کا شہداء کا مشن جاری رکھنے کا عزم۔ افغان عوام عالمی تعاون کے منتظر۔ ہنگامی بنیادوں پر 58 کروڑ ڈالرز کی فوری ضرورت ہے۔ صورتحال نہ سنبھلی تو 10 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہو سکتے ہیں، عالمی ادارے کی رپورٹ۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 50 اموات، 4253 نئے کیس رپورٹ۔ مثبت کیسز کی شرح 8.2% ریکارڈ۔ فرانس نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا۔ پیرس جانے والے پاکستانیوں کو قرنطینہ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ آسٹریلیا کے خلاف بابر اعظم کی قیادت میں 16 رکنی قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان۔ حارث رؤف اور شان مسعود کی واپسی۔ محمد عباس، نسیم شاہ، سرفراز احمد اور جاسر شاہ ریزرو میں شامل۔ 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 4 مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔
PSL 7 के दूसरे मरहले का कल से लाहौर में आगाज। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी कल शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स 10 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त। दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। जिस्मानी तौर पर मफलूज अफराद के लिए टच स्क्रीन टैबलेट डिवाइस तैयार। खुसूसी अफराद तैराकी और साइकिलिंग भी कर सकेंगे। और गदाकरी में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। किसी के पास खुले पैसे ना होने का जवाज ही ना रहे। पटना के बेकारी राजू प्रसाद का ई-वॉलेट का इस्तेमाल। गले में QR कोड आवेजा कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमान कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। माशरा कानून की हुक्मरानी से तरक्की करता है, ऐसा निज़ाम ला रहे हैं कि कोई ताकतवर किसी कमज़ोर का हक ना मार सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात फैसलाबाद में सेहत कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि बड़े चोरों को सजा ना मिलने की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया है। पेट फाड़ कर पैसा निकालने वाले बड़े चोर आज फिर इकट्ठे हो रहे हैं। इन्हें इमरान खान का डर है, इसीलिए चाहते हैं कि हुकूमत ख़त्म हो जाए। मज़ीद तफसील बताएंगे असदजार खान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई भी मुल्क अपने नजरिए पर कायम रह कर ही आगे बढ़ सकता है। माजी के हुक्मरानों ने अपने लिए अलग और अवाम के लिए दूसरा पाकिस्तान बनाया। उन्हें अवाम की मुश्किलात का कोई इदराक नहीं। अपना चोरी किया हुआ पैसा बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। इनको क्या पता कि पाकिस्तान की अवाम को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। 20 साल पहले दोनों एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। ये याद रखें कि तहरीक इंसाफ ने 2 दफा जरदारी को जेल में नहीं डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। वज़ीर आज़म ने कहा कि खुशहाल और कामयाब माशरे के लिए कानून की बालादस्ती जरूरी है। जब एक मुल्क को आपको तबाह करना हो, बम मारने की जरूरत नहीं होती। अच्छे बुरे की तमीज खत्म करें, मुल्क तबाह हो जाता है। वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है। वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ। अपनी फैक्ट्रियां देख रहा है जाके। वहां मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 400 करोड़ रुपया आ जाता है। उधर दूसरे आसिफ जरदारी को देख ले, उधर जी पापड़ वाला, चीनी वाला, उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब में तरक्याती मंसूबों बिलखसूस सेहत के शोबे में रिकॉर्ड 400 अरब रुपए के कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम पर वज़ीर आला पंजाब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब की तारीख में पहली मरतबा सेहत के शोबे के लिए रिकॉर्ड रकम मुख्तस की गई है। 23 नए अस्पताल हम पंजाब सूबा के अंदर बना रहे हैं और 158 जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं सूबा के अंदर अपग्रेड कर दी गई हैं और 91 इंशाल्लाह इस साल अपग्रेड हो जाएंगी। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने खुतबा इस्तकबालिया पेश करते हुए कहा कि फैसलाबाद के अवाम सेहत कार्ड के इजरा पर वज़ीर आज़म इमरान खान के मशकूर हैं। 10 बिलियन ट्री सुनामी, एहसास प्रोग्राम, कोरोना के दौरान मौसर हिकमत अमली और सेहत कार्ड वज़ीर आज़म इमरान खान के वो प्रोग्राम हैं जिन्हें दुनिया भर में सराहा जा रहा है। 750 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो इस साल पंजाब हुकूमत का है।
اس سے پہلے تو کبھی نہیں آیا. ہر سیکٹر کے اندر بڑے پیمانے کے اندر کام ہو رہا ہے. ہم نے مل کے اپنے وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینا ہے, ان کے بازو بننا ہے, ان کو مضبوط کرنا ہے, کیونکہ اس قوم کے لیے آخری امید جو ہے وہ صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان ہے. وزیر اعظم عمران خان نے شہریوں میں صحت کارڈ تقسیم کر کے فیصل آباد ڈویژن میں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا. اس پروگرام سے فیصل آباد, توبہ ٹیک سنگھ, جھنگ اور چنیوٹ کے 32 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے. اسد یار خان, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی صدارت میں راولپنڈی میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں ملکی سیکیورٹی صورتحال بالخصوص بلوچستان میں حالیہ واقعات پر جامع بریفنگ دی گئی. شرکاء کو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے مضموم عزائم ناکام بنانے کی حکمت عملی کے بارے میں بھی بریف کیا گیا. اپنے خطاب میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں, ان کے معاونین اور ساتھیوں کی تمام باقیات کو ختم کر کے دم لے گی. انہوں نے کہا کہ مایوس دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے دوبارہ منظم ہونے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ لڑ رہے ہیں. مسلح افواج نے قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کیے. جنرل قمر جاوید باجوہ نے تمام فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روایتی اور غیر روایتی آپریشنز میں اعلیٰ تربیت کا معیار برقرار رکھ کر ہی بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس لیے تمام فارمیشنز فوجی تربیت کے اعلیٰ معیار پر مزید توجہ دیں. شرکاء نے دفاع وطن کا مقدس فریضہ انجام دیتے ہوئے جانوں کا نذرانہ دینے والے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. شرکاء نے کہا کہ شہداء نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے حالیہ حملے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ناکام بنائے اور دہشت گردوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا. منتخب نمائندے اپنے حلقوں میں عوامی رابطہ مہم تیز کریں اور عوامی مسائل کے جلد حل کے لیے ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کریں. گوجرانوالہ ڈویژن سے تعلق رکھنے والے اراکین پارلیمنٹ سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ آئندہ بلدیاتی انتخابات میں کامیابی یقینی بنانے کے لیے پارٹی کارکنوں کو متحرک کیا جائے. اراکین اسمبلی نے وزیر اعظم سے اپنے حلقوں پر ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا. سپریم کورٹ نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مؤخر کرنے سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک پر مشتمل بینچ نے افریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 14 فروری تک ملتوی کر دی. عدالت نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ پر فیصلہ ہائی کورٹ نے نہیں کرنا تھا. الیکشن کمیشن کو سنے بغیر اجرت میں فیصلہ کیوں دیا گیا؟ الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا گیا کہ درخواست 5 اضلاع کے لیے تھی جبکہ الیکشن 18 اضلاع میں مؤخر کر دیے گئے. الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کا نیا شیڈیول جاری کر دیا ہے جس کے مطابق 18 اضلاع میں 31 مارچ کو پولنگ ہوگی. الیکشن کمیشن نے سینیٹر فیصل وافڈا کو نااہل قرار دے دیا. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 27 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ فیصل وافڈا نے امریکی شہریت چھوڑنے کا سرٹیفکیٹ جمع نہیں کرایا اور یہ بھی نہیں بتایا کہ کب امریکی شہریت چھوڑی. فیصلے کے مطابق فیصل وافڈا کا غلط بیان حلفی آرٹیکل 62(1)(f) کے زمرے میں آتا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا کہ فیصل وافڈا عوامی عہدہ رکھنے کے دوران حاصل مالی مراد واپس جمع کرائیں. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد کا شوق پورا کر لے. ان کی سیاست 50 دن کی رہ گئی ہے. عمران خان مزید مضبوط ہو جائیں گے. رپورٹ کریں گے ذیشان بھٹی. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اپوزیشن 23 مارچ کو بھی آتی دکھائی نہیں دیتی. فضل الرحمان کی سیاست مختلف، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مختلف ہے. اپوزیشن عدم اعتماد کے لیے اپنے بندے نہیں لا سکتی. یہ اب ہمارے اتحادیوں کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں. فنانس بل میں ابھی 13 جنوری کو میرا خیال ہے انہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. ہمیں اشاروں اور بیساکھیوں کا الزام دینے والے خود اشاروں اور بیساکھیوں پہ تڑپے جا رہے ہیں. کچھ نہیں ملے گا. بندے آپ نے لے کے آنے اور آپ نہیں لا سکتے. پاکستان میں امن و امان کی صورتحال اور کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم پاکستان آ رہی ہے جو انتہائی خوش آئند ہے. ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون 64 کروڑ اور پیپلز پارٹی 35 کروڑ کا حساب نہیں دے سکی. ان پارٹیوں کی فورن فنڈنگ کی جانچ کے لیے اسکروٹنی کمیٹی کو فعال کیا جائے. تفصیل سے آگاہ کریں گی صدف افضل. الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا کہ نون لیگ کے 9 اور پیپلز پارٹی کے 12 خفیہ اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں. بلاول
और मरियम सफदर को भी पार्टी फंडिंग का हिसाब देना होगा। उन्होंने कहा कि एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों जमातें इलेक्शन कमीशन और कानून से भाग रही हैं। ये यूएसए के अंदर जो कंपनियां बनाई हुई हैं, इन्होंने जो यूके के अंदर कंपनियां बनाई हुई हैं, ये जो मार्क सीगल को पेमेंटें करते रहे हैं, ये वो तमाम हकायक हैं जिन हकायक के जवाब फैक्ट्स के आज तक इन्होंने फराहम नहीं किए। ये हमेशा जो है वो राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनकी कोशिश होती है कि किसी तरीके से कानून की बालादस्ती के अंदर हर किस्म की रुकावट जो है ये खड़ी करें कि ये वतीरा जो है वो इनको छोड़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातों के केसेस का जो है वो फैसला हो। इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ममनुआ फंडिंग के मामले पर वजीर मुमलिकत फरूख हबीब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और इस्तदा की कि पीपीपी और नून लीग के खिलाफ स्क्रूटनी कमेटी को फाल किया जाए, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि स्क्रूटनी कमेटी को जल्द फाल कर देंगे। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस की समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से पेश न हो सके। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फंडिंग केस की समाअत 1 मार्च तक मुलतवी करते हुए फरीकैन से रिपोर्ट पर जवाब मांग लिए हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारों को तरगीब देने और कारोबार में आसानियाँ पैदा करने पर तवज्जो मरकूज है। सनतों को सस्ती बिजली और गैस की फराहमी के लिए कारोबारी लागत को कम करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह बात फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के इजलास की सदारत करते हुए कही। उन्होंने हिदायत की कि सनती अमल को तेज़ करने के लिए कारोबारी बरादरी की सहूलतें फराहम की जाएँ ताकि रोज़गार के वसी मौके पैदा हो सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में सनत की बेहतरी के लिए ये तमाम इक़दाम PTI के मंशूर के ऐन मुताबिक हैं। वज़ीर आज़म को बताया गया कि फैसलाबाद की ताजिर बरादरी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बुनियाद पर शहर में जदीद एयरपोर्ट, अस्पताल और थीम पार्क तामीर करना चाहती है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए गैर मुल्की कंपनीज़ के रजिस्ट्रेशन के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत की है। वीडियो लिंक के ज़रिए IT शोबे से वाबस्ता पाकिस्तानी निजात अमरीकियों के साथ इजलास की सदारत करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बहुत सलाहियत है, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फ्राहम की जाएँ। इजलास को बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के अमल को 1 विंडो ऑपरेशन के ज़रिए आसान बनाया गया है। नाज़रीन, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम के दायरा कार को फैसलाबाद डिवीजन तक तौसी दे दी गई है। इस मंसूबे के तहत अब फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग और चिन्नौट के शहरी भी मुफ्त इलाज की सहूलत से मुस्तफीद हो सकते हैं। ताहिर जाफरी इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड हुकूमत का एक इनकलाबी प्रोग्राम है जिसके तहत सरकारी और मुंतखब निजी अस्पतालों में फी घराना सालाना 10 लाख रुपए तक इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत मैसर होगी। फैसलाबाद समेत सूबे के 36 अजला में 3 करोड़ खानदान इस मंसूबे से बराह रास्त फायदा उठा सकेंगे। फैसलाबाद डिवीजन में सेहत कार्ड के इजरा के बाद पंजाब की तकरीबन 73% आबादी इस सहूलत से फायदा उठा रही है। सेहत कार्ड के जरिए फैसलाबाद के मुकामी अस्पतालों से इलाज मुआवजा करवाने वालों ने इस मंसूबे को नेमत करार दिया है। मेरे मियाँ का ऑपरेशन हुआ है, बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। सेहत कार्ड में कोई 1 रुपया भी नहीं लगा। देखभाल अच्छी हो रही है और बिल्कुल सेहत कार्ड अच्छा है। शहरियों का कहना है कि इस मंसूबे का दायरा कार मुल्क भर में फैलाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा खानदान इससे मुस्तफीद हो सकें। अब गरीब खानदानों को कोई आसरा मिल गया, पहले इलाज से बगैर मर जाते थे। ये सेहत कार्ड है आवाम की फलाह बहबूद वास्ते ठीक है। मेरे बाबा की अक्खा का ऑपरेशन हुआ है, बहुत महंगा ऑपरेशन था, सेहत कार्ड की वजह से हुआ ऑपरेशन। शहरी 8500 पर अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर SMS करके सेहत कार्ड के लिए अपनी अहलियत के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं। कौमी सेहत कार्ड मंसूबा बिलाशुबा फलाही रियासत की जानिब एक अहम कदम है। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। नकाब में इनकलाब, भारत पर सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का राज। मुस्लिम तालबा हिंदू गुंडों के तूफान के सामने पहाड़ बन गई। निहत्ती मुसलमान तालबा ने नकाब में इनकलाब बर्पा कर दिया। बुर्का पोश मुस्कान ने दुनिया को भारत का स्याह चेहरा दिखा दिया। सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड, सार्फिन ने मुस्कान को शेरनी करार दे दिया। और नाज़रीन, दुनिया की बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत में सरकारी सरपरस्ती में इंतहा पसंदी उरूज पर है। कर्नाटक में हिजाब पहनने की ममानियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के बाद स्कूल 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। वकार हैदर ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिजा कीजिए। वो निहत्ती लड़की आई, उसने सदाए तकबीर बुलंद की और छा गई। कल से मीडिया और सोशल मीडिया पर एक ही गूंज है और वो है अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت RSS کے ہاتھوں یرغمال نظر آ رہی ہے۔ کرناٹک میں حجاب پر پابندی کے لیے مظاہروں میں شدت آ گئی ہے اور حکام نے تعلیمی اداروں کو 3 روز کے لیے بند رکھنے کا حکم دے دیا۔ لڑکیوں کی تعلیم پر نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا، لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ سکول جانے سے روکنا خوفناک ہے۔ بھارتی رہنماؤں کو مسلمان خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کو روکنا ہوگا۔ کانگریس پارٹی کی رہنما پرینکا گاندھی نے ٹویٹ میں کہا، بھارتی آئین مسلمان طالبات کو حجاب پہننے کی اجازت دیتا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ حجاب پر پابندی انسانی بنیادی حق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ میں کیا پہنتا ہوں، میری بیٹی کیا پہنتی ہے، میری بیوی کیا پہنتی ہے، اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ کو کچھ نہیں پہننا، مت پہنو، میرے کو کیا کرنا ہے؟ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق مسلمان لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنا ان کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک میں باحجاب طالبات کے کالجوں اور اسکولوں میں داخلے پر پابندی کے کیس کی سماعت کرنے والا سنگل رکنی بینچ آئین کے ہوتے ہوئے بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکا اور معاملہ سماعت کے لیے لارجر بینچ کو بھیج دیا۔ وقار حیدر، PTV نیوز، اسلام آباد۔ بھارت کا گھناؤنا چہرہ اور مکروہ عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گئے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف تشدد اور نفرت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ بھارت میں اقلیتیں محفوظ ہیں اور نہ ہی نچلی ذات کے ہندوؤں کو تحفظ حاصل ہے۔ بے بنیاد الزامات لگا کر آئے روز مسلمانوں پر تشدد اور ان کا قتل ہندو انتہا پسندوں نے وتیرہ بنا لیا ہے۔ سب سے بڑی جمہوریت کے دعوے دار بھارت میں کمزور اور بے بس خواتین اور معصوم بچے بھی محفوظ نہیں۔ مودی سرکار ہندو انتہا پسندوں کی سرپرست بن گئی ہے۔ بھارتی حکومت کا سیکولرزم کے نقاب میں چھپا مکروہ چہرہ اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھارتی ظلم و ستم اور مسلم کش واقعات پر ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بھارت میں گائے کی توہین کا الزام لگا کر مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانا ہندو انتہا پسندوں نے معمول بنا لیا ہے۔ ہندو گنڈے مذہبی اجتماعات میں گھس جاتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے ایک مندر میں مذہبی جنگ کی تیاری کی اپیل کی گئی ہے۔ نریندر مودی کی حکومت مسلمانوں کے خلاف آگ کو ہوا دینے کے ہندو ایجنڈے کی سرپرستی کر رہی ہے۔ ناظرین، بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی۔ معروف کشمیری رہنما محمد افضل گرو کی شہادت کی 9ویں برسی پر مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ KMS کے مطابق ہڑتال کی کال نظر بند حریت چیئرمین مسرت عالم بٹ، میر وائس عمر فاروق اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے دی تھی۔ علاقے میں تمام دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے، جبکہ سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی معطل رہی۔ سری نگر، اسلام آباد اور دیگر علاقوں میں دکانداروں نے قابض حکام کی طرف سے سنگین نتائج کی دھمکیوں کے باوجود دکانیں کھولنے سے انکار کر دیا۔ قابض انتظامیہ کی طرف سے سری نگر سمیت مختلف علاقوں میں پابندیاں مزید سخت کر دی گئیں، جبکہ بھارتی پولیس نے گھروں پر چھاپوں کے دوران 60 سے زیادہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ مختلف علاقائی سیاسی جماعتوں کے قائدین کی طرف سے حد بندی کمیشن کے مسودے کو مسترد کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے، جس میں مقبوضہ جموں کشمیر اسمبلی میں مسلمانوں کی نمائندگی محدود کرنے کے لیے نئی حلقہ بندیوں کی تجویز دی گئی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ حد بندی کی مشق میں زمینی حقائق کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے نئی دلی میں ایک بیان میں مودی حکومت کی طرف سے صحافی فہد شاہ کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی میں اظہار آزادی رائے پر مکمل پابندی ہے۔ ناظرین، بھارتی عدلیہ کے متعصبانہ فیصلے کا شکار کشمیری طالب علم شہید افضل گرو کی برسی کے موقع پر مظفر آباد میں ریلیاں نکالی گئیں۔ افضل گرو کا مختصر احوال زندگی اور نکالی گئی ریلیوں کے بارے میں تفصیل عدیل احمد خان سے۔ 1969 کو مقبوضہ کشمیر کے ضلع بارہمولہ میں پیدا ہونے والا افضل گرو دہشت گرد نہیں تھا، بلکہ اس کا قصور فقط اتنا تھا کہ وہ کشمیری تھا اور کشمیریوں کی طرح انہیں ان کے پیدائشی حق کے خود ارادیت کے دیے جانے پر یقین رکھتا تھا۔ افضل گرو MBBS فرسٹ ایئر پاس کرنے کے بعد مقابلے کے امتحان کی تیاری میں مصروف تھا کہ 2002 میں اسے بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ افضل گرو اس جرم میں ملوث تھا اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی ثبوت، مگر اس کے باوجود افضل گرو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ ایک اور ناحق قتل دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے سیاہ چہرے کو مزید داغدار کر گیا۔ یہ ایک عالمگیر اصول ہے قانون کا کہ جہاں پہ عدالت کے اندر پبلک پالیسی داخل ہو جائے تو انصاف دوسرے دروازے سے نکل جایا کرتا ہے۔ تو ہم کسی طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ جو سبارڈینیٹ کورٹ کا فیصلہ تھا افضل گرو کی حد تک
वो दुरुस्त है। अफजल गोरो शहीद की बरसी के मौके पर मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम शहीद अफजल गोरो चौक में भारतीय मुतअस्सब अदलिया के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में शरीक मुजाहिरीन भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने अफजल गोरो के साथ साथ भारतीय अदलिया के मुतअस्सबाना फैसले का एक और शिकार मकबूल भट्ट शहीद के बैनर्स और तस्वीर भी थाम रखी थी। रैली के शुराका ने अफजल गोरो चौक से मुजफ्फराबाद श्रीनगर शाहराह पर मार्च किया। इससे पहले अफजल गोरो चौक में रैली के इज्तिमा से खिताब के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि भारत की मुतअस्सिब अदलिया ने कश्मीरी रहनुमाओं को जिद की बुनियाद पर फांसियां दी। उन्होंने कहा कि शहीद अफजल गोरो का अदालती कत्ल भारतीय नाम नेहाद जमहूरियत के चेहरे पर स्याह दाग है। मुकर्रीन ने आलमी बरादरी से मुतालबा दोहराया कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा कोशिशें करे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाख और जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शरका ने कहा कि मकबूल भट्ट और अफजल गुरु का खून ज़रूर रंग लाएगा। उन्होंने कहा कि कश्मीरी हक के खुद इरादियत के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। भारत कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को दबाने में नाकाम हो चुका है। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मुल्क से भागना चाहते हैं। लूटी हुई दौलत वापस किए बगैर ये बाहर नहीं जा सकते। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तला ने कहा कि अदम एतमाद का शोर भी NRO के लिए है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं अमजद अली खान। वफाकी वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इमरान खान को छोड़कर जाने वाली की सियासत खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का ये नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाज़त दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। वो हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों को वापस करें, उसके बाद जो है वो करेंगे। सियासत लोगों ने अपने मुफाद के मुताबिक करनी होती है। उन्होंने देखना होता है कि हमारा मुफाद किधर है। इस वक्त इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत ज़ीरो हो जाएगी। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि हमें कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है। सस्ता कर्जा लेकर महंगा कर्जा उतारा जा रहा है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुल्क को तरक्की की राह पर गमजन करने के लिए कोशां है। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ मीडिया मुकम्मल तौर पर आज़ाद और ताकतवर है। आपकी जो इंटेग्रिटी है और वो रिपोर्टिंग में बहुत अहम है। उसके अपने व्यूज जो भी हो, अपने ख्यालात उसके जैसे भी हो, वो रिपोर्ट वो करे जो हुआ है या जो उसकी आंख ने देखा है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि फ्री प्रेस की राह में सबसे बड़ी रुकावट वर्किंग सहाफियों को एडिटोरियल पॉलिसी से आउट करना है। सहाफती तंजीमों और रेगुलेटरी इदारों को प्रेस की आज़ादी के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अमजद अली खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की शदीद मसम्मत करते हुए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। कमेटी ने हक़ खुद इरादियत के गैर मुतसलसल जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार किया। चेयरमैन राना शमीम अहमद खान की सदारत में होने वाले इजलास में नोशी और पंजगोर में सिक्योरिटी एहलकारों पर दहशत गर्द हमलों की भी मसम्मत की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शेवा में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ये 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब होने वाले इस ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान दहशत गर्द इरफान उर्फ अबू दारा मारा गया। हलाक दहशत गर्द अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस था। दहशत गर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। मकामी रहायशियों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। उन्होंने इलाके में दहशत गर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज की हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। नाज़रीन, शदीद मुश्किलात के शिकार अफ़गान अवाम आलमी ताउन के मुंतज़र हैं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुंसलिक इदारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में बेघर अफराद को हंगामी बुनियादों पर इमदाद और तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के लिए 58 करोड़ 90 लाख डॉलर्स की फौरी ज़रूरत है। IOM ने जारी बयान में कहा है कि जारी बहरान खित्ते के मुल्कों में इंसानी ज़रूरियात में इजाफे के साथ मजबूरन नकल मकानी की वजह भी बन रहा है। जामे एक्शन प्लान के तहत बहरान में कमी लाने के लिए हमसाया मुल्क अहम किरदार अदा कर सकते हैं। यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल पर फौरी तवज्जो न दी गई तो 10
लाख बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं। यूनिसेफ के ताउन से काबुल के दूर दराज इलाकों में मोबाइल हेल्प टीमों ने काम शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन आलमी अमन के लिए मुसलसल ख़तरा है। अभी तक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का वादा पूरा नहीं किया गया। तहफ़्फ़ुज़ हुकूक़ फ़लस्तीन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्त कम होता जा रहा है, लेकिन हमारी उम्मीद है कि कब्ज़ा ख़त्म हो और दो रियासती हल के हदफ तक पहुँचा जाए। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि फ़लस्तीन में सियासी, इक़्तिसादी और सलामती की सूरत हाल अबतर होती जा रही है। तमाम फ़रीक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आते हुए ठोस इक़दामात इख्तियार करें। आलमी इदारा सेहत ने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस सामने आने के बाद अब तक 5 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। डेल्टा के मुकाबले में ओमिक्रॉन की शिद्दत कम होने के बावजूद हलाकतों की यह तादाद इंतहाई तशवीशनाक है। WHO ने तरक्की याफ्ता मुल्कों पर जोर दिया है कि वो पसमानदा मुल्कों में वैक्सीनेशन को यकीनी बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। न्यूजीलैंड में वैक्सीनेशन लाजमी करार देने के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। वेलिंगटन में मुजाहिरीन ने हुकूमत से पाबंदियाँ नरम करने का मुतालबा किया। कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। अमेरिका और कनाडा की सरहद पर एहतजाज करने वाले ड्राइवर्स का मुतालबा है कि हुकूमत लाजमी वैक्सीनेशन की शर्त वापस ले। दूसरी जानिब ओमिक्रॉन के फैलाव की वजह से न्यूजीलैंड ने आइंदा माह ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली T20 क्रिकेट मुलतवी कर दी है। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8.2% पर पहुंच गई है, जबकि वबा से मजीद 50 अफराद जान की बाजी हार गए। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि ओमिक्रॉन वायरस खतरनाक साबित हो सकता है। अवाम SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। तफसील से आगाह करेंगे समीउल्लाह। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 51,749 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,253 अफराद के टेस्ट मुस्बत रिपोर्ट हुए। इस वक्त 1,731 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ओमिक्रॉन वायरस के बारे में किसी गलतफहमी में मत रहें। ये बीमार भी कर सकता है और ज्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर सकता है। चुनाचे वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा से मजीद 6 अफराद जाँ बहक हुए हैं। सूबे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 11.7% तक पहुँच गई है। सूबे में 1,374 नए केसेस रिपोर्ट हुए। गिलगित बल्तिस्तान में योमिया कोरोना फैलने की शरह 9.61% हो गई है। सूबे में एक्टिव केसेस की तादाद 329 है। गिलगित बल्तिस्तान में गुज़श्ता एक रोज में 3,174 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। पंजाब भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई और कोरोना के 1,415 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सूबे में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 15,158 हो गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा 11% रिकॉर्ड की गई। सिंध में ओमिक्रॉन के मजीद 41 केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सिंध भर में ओमिक्रॉन के केसेस की तादाद 740 हो गई है। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी भरपूर अंदाज में जारी है। कोरोना से बचाव के लिए रीच एवरी डोर मुहिम भी कामयाबी से जारी है और शहरियों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 20 लाख से जायद वैक्सीन की खुराकें लगाई गईं। मुल्क भर में अब तक 19 करोड़ से जायद वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़राए ख़ारजा ने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और उनके हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। UAE पर हौसी बागियों के मिसाइल हमलों की मसम्मत करते हुए उन्हें इलाकाई अमन के लिए ख़तरा करार दिया गया और कहा कि इन हमलों को रोकना होगा। दोनों वज़राए ख़ारजा ने FATF समेत आलमी फोरम्स पर करीबी रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से अमरीका के लिए पाकिस्तान के नामज़द सफ़ीर मसूद ख़ान ने मुलाकात की। वज़ीर ख़ारजा ने बतौर अमरीका में सफ़ीर नामज़दगी पर मसूद ख़ान को मुबारकबाद दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ वसीउल बुनियाद और कसीरुल जहती ताल्लुकात का ख्वाह है। पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत जोग्राफियाई, इक़्तिसादी, तरजीहाती एजेंडे पर गामज़न है। नामज़द सफ़ीर ने वज़ीर ख़ारजा का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने पेशावर में वज़ीर आला बिजनेस कंप्लेंट पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। इस पोर्टल पर कारोबारी बरादरी की जानिब से मौसूल होने वाली दरख्वास्त फौरी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका महकमे को इरसाल की जाएगी। वज़ीर आला महमूद खान का इस मौके पर कहना था कि सूबे में कारोबारी सरगर्मी और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए साजगार माहौल यकीनी बनाने के लिए इस पोर्टल से बहुत कारआमद साबित होगा।
वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने PTV पेशावर मरकज़ का दौरा किया, जहाँ उन्हें मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक उमूर के बारे में ब्रीफ किया गया। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात का कहना था कि PTV को दौरे हाजिर के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए कोशिशें जारी है। PTV न्यूज़ के बाद PTV स्पोर्ट्स को HD पर मुंतकिल कर दिया गया है। जल्द ही PTV के दीगर चैनल्स और इलाकाई मराकज़ को HD मुंतकिल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कबायली अज़ला में जारी तरक्याती मनसूबों की मौसर तशहीर के लिए इक़दाम किए जाएँ। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने नजरसानी शुदा टेक्सटाइल और मलबूसात की पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। ECC का इजलास वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने सियालकोट खारियां मोटरवे की BOT की बुनियाद पर तामीर के लिए 6 अरब 94 करोड़ रुपए के ज़रज़मानत और सैनिक मनसूबे को लीज पर देने के मुआहदे में 3 साल की भी मंजूरी दी। इजलास में मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन की जानिब से पेश करदा तकनीकी और ज़िमनी ग्रांट्स की भी मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने माहौलियाती आलूदगी और ज़राअत के हवाले से इक़दाम उठाने के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। यादाश्त के मुताबिक माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के अलावा सऊदी अरब पाकिस्तान की ज़रई अजनास दरामद भी करेगा। मुआवन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम ने सऊदी हम मनसब अब्दुर्रहमान बिन अल मोहसिन अल फजली से रियाद में मुलाकात की। मलिक अमीन असलम का कहना था कि पाकिस्तान की तरह वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ग्रीन मशरिक़ वस्ता का विजन बहुत अहम है। सऊदी वज़ीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे को सराहा और कहा कि दोनों ममालिक ज़राअत के शोबे के अलावा माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से भी काम करेंगे। सरबराह पाक फ़िज़ाई एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर से स्विट्ज़रलैंड के सफ़ीर ने मुलाकात की। इस मौके पर एयर चीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात कायम हैं। उन्होंने दोनों फ़िज़ाई अफ़वाज के माबैन मौजूदा दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इयादा भी किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़िज़ाइया की पेशावराना महारत और PAF की तरफ से खुद इन्हिसारी के मैदान में होने वाली गैर मामूली पेशरफ्त को सराहा। हुकूमत पाकिस्तान ने सिख कम्युनिटी की सहूलत के लिए बड़ा इक़दाम उठाते हुए करतारपुर शकरगढ़ रेलवे ट्रैक बहाली का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इरफान खान खालिद। करतारपुर बनने जा रहा है भरपूर सियाहती सरगर्मियों का मरकज। सिख यात्रियों और आवाम को मिलेगी जल्द ही तेज रफ्तार ट्रेन सर्विस। पहले मरहले में 21 साल बाद 17 किलोमीटर तवील नारोवाल करतारपुर ट्रैक पर काम शुरू हो गया। ट्रेन के रस्ते तो भी बहाल कर रहे हैं तो उस तो यही है कि चलो जिन्ना कोल व्हीकल आपदे नहीं है या जो फैमिली इकट्ठी ज्यादा बड़ी फैमिली हैगी आ वो इकट्ठे होना चाहते हैं तो उन्होंने वास्ते अच्छी फैसिलिटी है। रेलवे रूट की बहाली के लिए मालगाड़ी तैयारशुदा ट्रैक लेकर नारोवाल पहुंच गई। रेलवे हुकाम का कहना है कि ट्रैक के लिए रेल की पटरी और दीगर तमीराती सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। ये जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक सिख यात्री भाइयों को और इस इलाका की आवाम को ये फैसिलिटेट करने के लिए ये प्रोजेक्ट खोला जा रहा है। 21 साल पहले जो ट्रैक बंद था इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये अपनी साबका रौनक की तरह बहाल हो जाएगा। शहरी भी ट्रेन बहाली पर खुश दिखाई देते हैं। मौजूदा हुकूमत 450 मिलियन रुपए की लागत से 17 किलोमीटर तवील ट्रैक और रेलवे स्टेशन की बहाली का वादा पूरा कर रही है। साथी रिपोर्टर जाहिद अली शाकर के साथ मोहम्मद इरफान खान खालिद, करतारपुर शकरगढ़। फैसलाबाद के 8 बाजार के एन वस्त में घंटाघर के नाम से एक तारीखी इमारत मौजूद है जिस पर यहाँ का हर शहरी फख्र महसूस करता है। तफसील से आगाह करेंगे अवैस टोगर। सांगला हिल का ये सुर्ख पत्थर मुंबई शहर से आई घड़ी और इसके इर्द गिर्द उभरे हुए खूबसूरत नक्शो निगार मिल मिलाकर ये सब वक्त की रफ्तार दिखा रहे हैं। अंग्रेजी हरूफे तहज्जी पर चलती ये सुइयां माजी का रंग लिए हाल की खबर दे रही हैं। ये है घंटा घर जो शहर के बीचों बीच वाक़या है। लैलपुर का ये घंटा चौक जितना कदीम है उतना ही दिलकश है। सुर्ख रतीले पत्थर से बनी ये इमारत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 4 मंजिलों पर मुश्तमिल इस इमारत की कुल ऊंचाई तकरीबन 100 फीट है। 1903 में बरतानवी लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रेवाज ने इस घंटा घर की तामीर का आगाज किया। सर गंगा राम ने घंटा घर का डिजाइन तख्लीक किया और इसके मेमार गुलाब खान थे। यहाँ पर एक कानून पास किया गया कि घंटा घर की जितनी ऊंचाई है उससे ज्यादा ऊंची कोई भी बिल्डिंग जो है वो नहीं बनाई जाएगी। चौथी मंजिल पर घड़ी को नस्ब किया गया है। घंटा घर की तामीर पर कुल लागत 40,000 रुपए आई थी। ये इमारत 8 बाजारों के एन वस्त में वाक़या है। 1 सदी से कदीम घंटा घर अब शहर का मसरूफ तरीन कारोबारी मरकज बन चुका है। घंटा घर शहर फैसलाबाद के तजारती मरकज के साथ इस शहर की तारीख की अक्कासी करता है कि किस तरह इस शहर को एक बाकायदा नक्शे के तहत वजूद में लाया गया।
कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अवैस डोगर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। नौजवानों को बाइज्जत रोजगार फराहम करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम के तहत 1 लाख ग्रेजुएट्स को इब्तदाई तौर पर जदीद डिजिटल कोर्सेज में दाखिला दिया जाएगा। प्रोग्राम की मंजूरी देते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने तालीमी इदारों से फारिग तहसील तलबा और तालिबात को जदीद हुनर सिखाने के लिए स्कॉलरशिप देने की भी हिदायत की। मंसूबे का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर खुद इन्हिसारी की तरफ गामजन करना है। 6 माह के इन कोर्सेज की तकमील पर नौजवान माहिरीन को नैनो डिग्री के हुसूल समेत मुलाजमतों की पेशकश भी की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बुज़िंजो ने अवामी शिकायत पर कोयटा शहर का दौरा किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान को इलाके के अवाम ने तामीराती काम में ताख़ीर और निकासी आब के निज़ाम की अबतर सूरत हाल और इलाके के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला ने सब्ज़ल रोड की तामीर में ताख़ीर से इलाके में पैदा होने वाली नागुफ्ता सूरत हाल का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने तरक्याती मनसूबों में सुस्त रवि पर बरहमी का इज़हार करते हुए हुक्काम को हिदायत की कि तरक्याती काम की रफ्तार तेज़ की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की बरियत की अपील पर समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी है। चीफ जस्टिस अतर मुनिल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 8 अरब के मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की बरियत की अपील पर समाअत की, जिसमें एहतसाब अदालत की जानिब से बरियत दरखास्त मुस्तरद करने के फैसले को चैलेंज किया गया। आसिफ जरदारी के वकील की जानिब से इल्तवा की दरखास्त जमा कराई गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अदालत ने कहा कि पाक लेन और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में भी अपीलें 29 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। मशकूक ट्रांजैक्शन केस को भी इन्हीं अपीलों के साथ सुना जाएगा। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हमारी जमात ने हमेशा अवाम के सियासी और माशी हुकूक के लिए जदोजहद की। उन्होंने कहा कि हमारे मौक़िफ़ से इख्तलाफ करने वाले अब इस पर सोच विचार कर रहे हैं। हुंजा का कदीम अल्तत कला अपनी मुनफरिद तर्ज़ तामीर की वजह से पूरी दुनिया में खास पहचान रखता है। तफसील से आगाह करेंगे इकराम नजमी। कुदरती हुस्न से मालामाल सयाहों की जन्नत वादी हुंजा न सिर्फ अपनी दिलकश नज़ारों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, बल्कि इस वादी में हज़ारों साल कदीम फन तामीर के अजीम शाहकार भी मौजूद है। हुंजा का कदीम अल्तत किला अपनी मुनफरद तर्ज तामीर की वजह से पूरी दुनिया में अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। जो लोकल हिस्टोरियन हैं, लोकल इन्हेबिटेंट्स हैं, उनके मुताबिक इसकी ओरल हिस्ट्री 900 साल है। लोअर पोर्शन की जो लकड़ी की रेडियो कार्बन डेटिंग हुई जेनीवा में, उसके मुताबिक 1100 साल पुरानी निकली है लकड़ी, और वॉच टावर की लकड़ी 1250 साल पुरानी बताते हैं। इसके मुताबिक रिचर्ड ह्यूज ने लिख दिया कि ये होगा ऑलमोस्ट 1100 या अबाउट 1000 ईयर्स ओल्ड। शिगर जो कि बल्दिस्तान का एक इलाका है जिसे लिटिल तिब्बत कहा जाता है, वहाँ से आए हुए लोगों का तामीर शुदा है। एक शहजादी बयाह के आई, उसके साथ आने वाले बारातियों ने तामीर किया। दरियाए हुंजा के सिरहाने आमोदी चट्टान पर वाक़ा लकड़ी और मट्टी के गारे से बना फन तामीर का ये अजीम शाहकार मुख्तलिफ कमरों, तहखानों, बरामदों और ऊंची फसील पर मुश्तमिल रिहायशी किला है। सालाना तौर पे तकरीबन कोई 45 से 50 हज़ार तक टूरिस्ट जो है वो विजिट करते हैं। इंसानी हाथों का ये अजीम तख्लीक इलाके की तारीखी विरसे और यहाँ पर बसने वाले कदीम मेहनती लोगों की हुनर, महारत और सकाफत की अक्कासी करता है। इकराम नजमी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जिला हुंजा। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन राना तनवीर हुसैन की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ, जिसमें सिविल एविएशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की ऑडिट रिपोर्ट का जायजा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि गुज़श्ता कई साल से सिंगल बिडर से कपड़ा खरीदा जा रहा है, जो पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी एविएशन ने बताया कि हमने पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की। कपास, बिजली वगैरह की कीमतों में इजाफे की वजह से कीमत बढ़ती है। पेपरा रूल्स की पासदारी की गई है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तमाम सेक्रेटरीज को इजलास में बुलाने की हिदायत की, जिन्होंने गुज़श्ता 5 माह से DAC नहीं की।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ैली कमेटी ने EOBI के अरसे दराज से ज़ेर-ए-इल्तवा केसेस को जल्द निपटाने के लिए अटॉर्नी जनरल से कहा है कि वो अदालत उस्मा से इन केसेस को जल्द निपटाने की इस्तदा करें। कमेटी का इजलास कन्वीनर रियाज अहमद फतियाना की सदारत में हुआ, जिसमें वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज़ और इंसानी तरक्की की ऑडिट का जायजा लिया गया। इजलास को EOBI के असासों, पेंशनर्स को पेंशन की मद में अदा की जाने वाली रकम और अदालतों में केसेस की तादाद से भी आगाह किया गया। कानून और इंसाफ के बारे में सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास सैयद अली जफर की सदारत में हुआ। कमेटी ने नए सूबों जनूबी पंजाब और बहावलपुर के मामलात के लिए अवामी समाअत का फैसला किया है। कमेटी ने आला अदलिया में जजेस के तकर्रुर और अज़ख़ुद नोटिस के इख्तियार के कवायद के हवाले से मामलात पर अलग अलग बहस का भी फैसला किया है। कमेटी ने कहा कि ख़वातीन की असमत दरी के वाक़यात नज़रअंदाज करने के रवैये और ऐसे मुकदमात के फैसलों में ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली की रंगारंग तकरीबात में कल्चरल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर इलाकाई फनकारों ने खूब रंग जमाया। तफसील से आगाह करेंगे मुख्तार अंजुम। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट 17वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली की रंगारंग तकरीबात का आगाज बहावलपुर में ट्रॉफी की रुनमाई के साथ ही हो गया है। इस सिलसिले में DHA बहावलपुर में कल्चरल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ इलाकाई फनकारों ने अपने सुरों के रंग बिखेरे। लाहौर से आए फनकारों ने सूफियाना कलाम पर खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। पंजाब की पहचान भंगड़ा को भी खूब पसंद किया गया। चोलिस्तान जीप रैली की मुख्तलिफ तकरीबात बहावलपुर डिवीजन की तीनों इजला बहावल नगर, रहीमा खान और बहावलपुर में 13 फरवरी तक जारी रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ मैं हूँ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस दौरान कश्मीर और इससे मुल्हका इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, लाहौर और बहावलपुर में सुबह के औकात में धुंध की तवक्को है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लह कालाम -11, गोपिस -7, स्कर्दू -6, अस्तोर अरतनाग -5, पालम जब्बा, पाड़ा छनार -4, बगरोट हुंजा -3, कोयटा, कल्लात, गिलगित, दीर, शुपाया -2, पुलवामा, बारामूला और रावलाकोट में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर भी मुल्क के अहम शहरों के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। नाज़रीन, कदीर मौसम का हाल बता रहे थे। अब आपको बताएं कि टेक्नोलॉजी की तरक्की ने हर शोबे पर असरात मुरतब किए हैं। अब भिखारियों ने भी भीख मांगने के लिए डिजिटल सिस्टम को सहारा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, भारतीय रियासत बिहार के शहर पटना में भिखारी राजू प्रसाद ने भीख मांगने के लिए ई-वॉलेट का सहारा ले लिया, ताकि किसी के पास खुले पैसे ना होने का जवाज ही ना रहे। राजू प्रसाद ने गूगल पे, फोन पे और पे टाइम के जरिए लोगों से भीख वसूल करने के लिए गले में QR कोड आवेजा कर लिया है। राजू प्रसाद दिन भर मकामी रेलवे स्टेशन और ज्यादा रश वाले इलाकों में भीख मांगते हैं। उन्होंने सरकारी बैंक में अपना अकाउंट भी खोल रखा है। नाज़रीन, जिस्मानी तौर पर मफलूज अफराद के लिए एक ऐसी डिवाइस तैयार कर ली गई है जिसकी मदद से वो चलने फिरने के साथ साथ तैराकी और साइकिल चलाने के भी काबिल हो सकेंगे।
امریکی سائنسی جریدے نیچر میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ ڈیوائس ایک ٹچ اسکرین ٹیبلٹ کے ذریعے کام کرتی ہے۔ اس ڈیوائس کو مصنوعی ذہانت کا ایک سافٹ ویئر فاصلے سے چلاتا ہے۔ اس ڈیوائس کا تجربہ جن مریضوں پر کیا گیا ان کی عمریں 29، 32 اور 41 برس تھیں، اور تینوں ہی مرد موٹر سائیکل کے حادثات میں زخمی ہوئے تھے۔